Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of TYBCom Economics Semester 5, Module 1, Chapter 2, Part 4. Dear friends, we have already started with the chapter that is Social Infrastructure. Basically, the topic social infrastructure was divided into two main parts. First part was education and second part is healthcare, that is family welfare. Dear friends, in our last session we have covered the topic of education. What are the different objectives to set up different new education policy, and what are the different programs and policies referred to for education, like सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया गया, मॉडल स्कूल 6000 तक हमने इस्टेब्लिश कर दी, गर्ल्स के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय अलग से शुरू की गई, क्लस्टर एरिया में, रिमोट एरियाज़ में, लोकल एरिया में, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए टोटली एजुकेशन फॉर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिक्लेयर किया गया, मिड डे मील शुरू कराया गया स्कूल और कॉलेज के अंदर, विच आर हेल्ड बाय पब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. सो दिस वर द टॉपिक ऑफ programs and policies regarding education. Dear friends, today we are going to start with our second part of social infrastructure, that is capital B, health and family welfare. Let me clarify one word here, friends. When we are using the word welfare, that is well-being of the society. But remember one thing, well-being of the society totally depends on well-being of family. All the family members should be healthy. मतलब हम बीमारियों से दूर रहे. हेल्दी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है फ्रेंड्स कि आपका वजन ज़्यादा हो. You should not be suffering from any illness, sickness, any diseases. So health and family welfare, that is the second pillar of social infrastructure in our country. So let's begin with our second part, second base, that is health and family welfare. In a developing country, most people use public health care. Let me revise. Education and healthcare, in both these we have introduced private sector. फ्रेंड्स, हमने ये बात इसके पहले एक बार डिस्कस की थी कि जब से कोकिलाबेन अंबानी, सेवन हिल्स, ब्रिज कैंडी ऐसी जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल आ चुकी है, तो दे आर प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट ट्रीटमेंट, बट दे आर दैट मच एक्सपेंसिव कि नॉर्मल पीपल, normal population of our country cannot afford these expenses. So today majority of population use public healthcare system. It covers total 4 different bases. So start with first one, that is public healthcare infrastructure. Sorry friends, it is mistaken. Total health and family welfare is categorized into two different parts. First one is public healthcare infrastructure, and second one is public healthcare programs and policies. Today, our full session is based on public healthcare infrastructure. It means from the base till the height. इंडिया में जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है, उसका जो पूरा सिस्टम का बेस जो है, दैट इज पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इट इज अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्राइमरी लेवल. फ्रेंड्स, एट दिस लेवल हेल्थ केयर is provided by sub centers and primary health centers.
बहुत ध्यान से समझा पाऊँ तो वर्ड इज़ वेरी क्लियर। प्राइमरी लेवल मतलब छोटे से छोटे कस्बे तक, छोटे से छोटा गांव जो होता है, कस्बा जो होता है, वहाँ तक एक नॉर्मल लोअर लेवल के इंसान तक हेल्थ की ट्रीटमेंट को पहुँचाना। वो कैसे पहुँचाया जाए? तो एट दिस लेवल हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। Now definitely we have to understand कि what is sub centers and what is primary health centers. Sorry my friends. अगर आपने कभी कोई पुराने मूवी देखे हो तो छोटे छोटे गांव कस्बे में कोई डॉक्टर का डिस्पेंसरी नहीं होता है फ्रेंड्स। वैद हकीम जैसे जो लोग होते हैं, एक छोटा सा खोली और उसमें चारपाई लगा के बैठ गए हैं। वैद हकीम आप उसको कुछ भी बोलो, तो वो जो छोटा सा खोली है जहाँ पे कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, नो फैसिलिटीज़ एट ऑल, एक छोटा सा इंजेक्शन भी यहाँ पे मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। आपको मेडिसिन दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, बीमारी पहचानने में आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तो प्राइमरी लेवल पे द सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। नाउ लेट मी क्लेरिफाई कि दोनों में क्या फ़र्क है, ये कैसे होता गिना जाता है। तो नाउ स्मॉल ए फ्रेंड्स, ये प्राइमरी लेवल का फर्स्ट पार्ट है, ये प्राइमरी लेवल का फर्स्ट पार्ट है। सब सेंटर्स दीज आर लोकेटेड इन अंडर डेवलप्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज, ईच कवरिंग अ पॉपुलेशन 3000 to 5000। बहुत ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो छोटा सा कोई कस्बा, छोटा सा कोई गांव, गांव का टोटल पॉपुलेशन जो है इट शुड बी एग्जिस्टेड बिटवीन 3000 to 5000 नंबर ऑफ पीपल। मतलब कोई पहाड़ी एरिया हो या कोई जंगल के अंदर का एरिया हो जहाँ पे मुश्किल से 3000 से 5000 के लोगों के बीच में लोग बसते रहते हैं, तो वहाँ पे बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए सब सेंटर्स ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Our second part is primary health centers. These exist in large villages with population between 20,000 and 30,000. Friends, you have to mug up these numbers also for MCQ purpose. सब सेंटर्स कहाँ पे एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं? जहाँ पे गांव का टोटल पॉपुलेशन 3000 से 5000 के बीच में है, तो उससे थोड़ा बड़ा डिस्पेंसरी लगेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो गांव का टोटल पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में है, अगर कोई गांव का टोटल पॉपुलेशन 20,000 से 30,000 के बीच में है, तो वहाँ पे थोड़े बड़े लेवल का प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जहाँ पे बिस्तर पॉसिबल हो, जहाँ पे बेड्स अवेलेबल हो, जहाँ पे डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स ये सब चीज़ें पॉसिबल हो। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं होती फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई सोनोग्राफी निकाला जाएगा या सीटी स्कैन किया जाएगा, नॉट पॉसिबल। पर हाँ, अगर बुखार है और किसी को अगर लेटाना पड़ा, टाइफॉइड मलेरिया है, ओके, किसी को एडमिट करना पड़ा, तो ये सुविधा, इतनी बेसिक लेवल की सुविधा वहाँ पे रहेगी। तो दैट वॉज आवर फर्स्ट पार्ट, प्राइमरी लेवल। एंड प्राइमरी लेवल आर अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सब सेंटर्स जहाँ पे गांव का पॉपुलेशन 3000 to 5000 के बीच में होता है, एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे गांव का टोटल पॉपुलेशन 20,000 से 30,000 के बीच में रहेगा। तो दैट वॉज प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट स्टेप पे आता है और सेकेंडरी लेवल एस्टैब्लिशमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ हम पब्लिक हेल्थ केयर के लिए समझ रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एंट्री नहीं हो, जहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी लाइक कोकिलाबेन अंबानी या ब्रिज कैंडी या बॉम्बे हॉस्पिटल नहीं पहुँचने वाली है। ये उस लेवल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल पे सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब वी आर इंट्रोड्यूसिंग सेकेंडरी लेवल। देयर आर community health centers
एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। फ्रेंड्स वर्डिंग्स बहुत क्लियर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अगर हम मुंबई डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, थाने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, नासिक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जिला जिसे हम बोलते हैं, थाने डिस्ट्रिक्ट, ओके, नासिक डिस्ट्रिक्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, तो उस लेवल पे हेल्थ सेंटर जो होते हैं तो दैट इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और उसके पहले वर्ड आएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट वन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। These are primarily in semi-urban areas covering between 80,000 to 1,20,000 population। अगर कोई एरिया वो विलेज से बड़ा है लेकिन वो सिटी नहीं है, टाउन नहीं है, तो दैट इज सेमी अर्बन एरिया। और अगर उस एरिया का पॉपुलेशन 80,000 से लेकर 1,20,000, 1,20,000 के बीच में अगर है तो वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इसको एस्टैब्लिश किया गया है। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात समझा पाऊँ तो अगर सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है प्राइमरी लेवल पे, अगर किसी को टीबी हुआ है, अब वहाँ के डॉक्टर ने टीबी डिटेक्ट तो किया लेकिन वो कंफर्म नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई सोनोग्राफी एक्सरे नहीं निकला है, ना उसके पास लंबी ट्रीटमेंट है। तो व्हाट दे विल डू, प्राइमरी लेवल पे जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल है वो सेकेंडरी लेवल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ये केस ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब कागज़ लिख के दे देंगे। अगर आपको एक पुराना मूवी देखो ना तो ऐसे बहुत सारे सीन उसमें दिखाई देते हैं कि छोटा सा गांव कस्बा होता है और कोई बीमार होता है, ओके, तो उसको लेकर जाते हैं हकीम वैद्य के पास और वो बोल देते कि भाई अपने पास तो ये सुविधा नहीं है तो आप उनको शहर में ले जाइए। अब शहर तो काफ़ी दूर है तो वो टपरी बपरी जो भी मिला या रिक्शा मिला उस पर डाल के लेकर गए, ओके, बचा तो ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है तो सेकेंडरी लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, दिस टू कैटेगरीज आर प्रोवाइडेड। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट वन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे हमने बोल दिया कि अगर आप सेमी अर्बन एरिया है, मतलब ये स्मॉल विलेज नहीं है, ओके, अगर स्मॉल विलेज होता तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर होता, लेकिन ये बड़ा टाउन भी नहीं है, बड़ा कोई सिटी नहीं है, वरना वहाँ पे तो हर तरह की सुविधा अवेलेबल होती है। ये सेकेंडरी लेवल पे सेमी अर्बन एरिया है जहाँ का पॉपुलेशन 80,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में है। फ्रेंड्स अगर आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट का मोहल्ला क्लिनिक, ये अगर कॉन्सेप्ट सुना हो, मोहल्ला क्लिनिक, मतलब एक बड़ा सा एरिया है, मोहल्ला है ना, वो गांव है ना, वो कोई बहुत बड़ा टाउन बन चुका है, वो एरिया एकदम पॉश नहीं है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर, कंपाउंडर और कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर वो एरिया घूमते हैं, तो इट इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। पर अगर वो मोहल्ला क्लिनिक है तो इट इज़ मूवेबल, वरना इट इज़ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे थोड़ा बड़ा लेवल आता है, दैट इज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फ्रेंड्स अब ये जो चीज़ है, दीज आर हॉस्पिटल्स दैट ट्रीट पेशेंट्स रेफर्ड बाय द लोअर लेवल हेल्थ सेंटर्स। फ्रेंड्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट। सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर है, अगर उनसे नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि ये बीमारी क्या है, या वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट्स पॉसिबल नहीं है, ग्लूकोज का बाटला पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर पॉसिबल नहीं है, या वेंटिलेटर मशीन पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स अगर मैं अभी की बात करूँ, कोविड-19 का जो क्रिटिकल सिचुएशन अभी चल रहा है फ्रेंड्स, वॉट एवर, ओके, अभी जो भी चल रहा है, आपने बहुत बार सुना होगा कि बीएमसी के मुंह से ये निकल जाता है कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आप उनको वहाँ ट्रांसफ़र करके दीजिए। इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड फ्रेंड्स, अपने नज़दीक में नेस्को जो जगह है, नेस्को, वहाँ पे 1000 बेड्स का पूरा उन्होंने सेंटर खड़ा कर दिया कोविड-19 के लिए स्पेशली। तो वहाँ पे वो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ग्लूकोज, वॉट एवर, वो सब सुविधा अवेलेबल होती है। तो जहाँ पे लोअर प्राइमरी लेवल पे ये सब सुविधा नहीं है हेल्थ सेंटर के पास, तो वहाँ के डॉक्टर्स लेटर लिखकर, चिट्ठी लिखकर उनको ट्रांसफ़र कर देंगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास। तो दैट वाज सेकंड पार्ट इन सेकेंडरी लेवल।
तो फर्स्ट वॉज प्राइमरी लेवल, जहाँ पे दो चीज़ थी, सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर. सेकेंड वॉज सेकेंडरी लेवल, जहाँ पे अगेन दो चीज़ थी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. फ्रेंड्स, our third part is that is tertiary level, जिसको आप नॉर्मली प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर बोलते हो ना, तो वो सर्विस सेक्टर होता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे वो वर्ड नहीं यूज़ करना है. इट शुड बी नॉट सर्विस लेवल, इट शुड बी नॉट सर्विस सेक्टर, क्योंकि पूरा एजुकेशन एंड पूरा हेल्थ केयर जो सिस्टम है, इट इज़ कंसिस्टेड इन सर्विस सेक्टर ओनली. तो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल and tertiary level. Health infrastructure at this level includes the All India Institute of Medical Sciences and medical colleges and hospitals. Dear friends, अगर मैं गलती नहीं करूँ, if I am not mistaken, all of you should have heard one word is AIIMS. AIIMS. Friends, the full form is All India Institute of Medical Sciences and Medical Colleges and Hospitals. फ्रेंड्स, एम्स जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ केयर के हिसाब से गवर्नमेंट अस्पताल है दिल्ली में. फ्रेंड्स, ये एम्स के पास हर एक तरह की हेल्थ के रिलेटेड सुविधा अवेलेबल है. बिल्कुल यस. आज की तारीख में भी फ्रेंड्स, कोविड-19 के हिसाब से भी एम्स के डॉक्टर के पास जितनी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हम ये बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में और किसी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. एम्स के डॉक्टर का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, एम्स के डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ का जो रेशियो है, रिकवरिंग रेशियो है, इट इज़ एक्सीलेंट वन. तो इट इज़ टर्शरी लेवल, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सिटी हो जाता है दिल्ली, तो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उस केस को टर्शरी लेवल पे एम्स जैसे अस्पताल में फ्रेंड्स ट्रांसफ़र किया जाता है. तो दैट इज़ टर्शरी लेवल. ओके. फोर्थ वन इज इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स. फ्रेंड्स, अगर मैं गलत नहीं जाऊँ तो यू विल गेट माई पॉइंट, एंड दैट इज़ हम बहुत बार कोविड-19 सिचुएशन में सुन रहे हैं कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका रिपोर्ट ऐसे ही निकलना चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए. ठीक है, रिसर्च टीम जो है, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल, IMRC जो है, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल, वो वैक्सीन सर्च करना वो अलग डिपार्टमेंट हो गया, पर एक स्टैंडर्ड नक्की किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. फ्रेंड्स, कि अगर कोविड-19 अभी है तो हाउ टू ऑपरेट दैट सिस्टम, फॉर दैट पर्पज वी नीड स्टैंडर्डाइज सिस्टम. सॉरी. तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, दैट इज IPHS. This IPHS, that is Indian Public Health Standards, were published on 2007 to provide a reference point for the functioning of sub-centers, primary health centers, community health centers, sub-district hospitals and district hospitals. फ्रेंड्स, ऊपर जो भी शॉर्ट फॉर्म थे वो सभी के मैं फुल फॉर्म बोल चुका हूँ. मतलब सब सेंटर में क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल होनी चाहिए, वहाँ के डॉक्टर जो अपॉइंट किए जाएंगे उसका सिस्टम क्या होना चाहिए, हाउ डू दे फंक्शन, दे परफॉर्म, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का सिस्टम क्या रहेगा, कहाँ कहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे एस्टैब्लिश करनी चाहिए, हाउ डू दे परफॉर्म, उनके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या, वहाँ के स्टाफ का अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या, क्या क्या ट्रीटमेंट किस लेवल पे वहाँ पे पॉसिबल हो, क्या कॉस्टिंग आएगा. तो ये सब चीज़ों को फंक्शनिंग करना, रूल आउट करना, ये पूरा जो पावर है वो IPHS के पास है. फ्रेंड्स, अब एक MCQ के लेवल की एक बात आ रही है. फिजिशियंस मतलब जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हम प्रैक्टिशनर बोलते हैं, नॉर्मल डॉक्टर, MBBS, मुन्ना भाई MBBS नहीं फ्रेंड्स, नॉर्मल MBBS डॉक्टर जो होते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिशनर जिसे हम बोलते हैं, फिजिशियंस. तो फिजिशियंस डेंसिटी पर 1000 पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज जस्ट
0.758 in 2016. Friends, sorry to inform you this, 1000 लोगों के बीच में अपने पास एक सिंगल डॉक्टर फिजिशियन अवेलेबल नहीं है. फ्रेंड्स, वी आर यूजिंग द वर्ड 0.758. मतलब एवरी 1000 पॉपुलेशन के ऊपर वी डोंट हैव एनी सिंगल डॉक्टर इन इंडिया. जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम किस लेवल का सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं फॉर हेल्थ केयर सिस्टम, फॉर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. 1000 लोगों के ऊपर ध्यान रखने के लिए हमारे पास एक डॉक्टर भी पूरा नहीं है. फ्रेंड्स, नॉर्मली जब हम यूएनडीपी की बात करते हैं, ओके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उनका एक सर्वे ये बोल रहा है कि नॉर्मली 1000 लोगों के बीच में एटलीस्ट वी शुड हैव 30 डॉक्टर्स मिनिमम. 1000 लोगों के ऊपर ध्यान रखने के लिए 30 डॉक्टर्स तो मिनिमम होने चाहिए. जबकि इंडिया में फ्रेंड्स 2016 का सर्वे बोल रहा है कि 1000 लोगों के ऊपर ध्यान रखने के लिए इंडिया के पास एक भी डॉक्टर पूरा नहीं था. इट वॉज 0.758. तो जस्ट थिंक, आज हम ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 में डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं. फ्रेंड्स, उतने डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न बहुत सारे डॉक्टर्स फर्जी डिग्री लेकर गांव में जाके डिस्पेंसरी खोल देते हैं. अब हम कभी उनका डिग्री तो पूछते भी नहीं हैं. तो these are some of the big issues. So that was our today's topic, that is public healthcare infrastructure. Dear friends, I repeat, chapter 2 was basically divided into two parts. First part was education and second part is health and family welfare. We have covered the topic in what is social infrastructure introduction part, what are the objectives behind that, what are importance of social infrastructure, why we need social infrastructure in our country, वो हमने समझा था. Education में we have already explained different programs and policies introduced by Indian government for education purpose. Today we have covered topic of public healthcare infrastructure under capital B, that is health and family welfare. Friends, in our next session we will start with the topic of public health programs and policies. Whatever programs and policies launched by Indian government from public health point of view, that is public healthcare system. तो जो भी हमने सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो सब समझा, ये सब जो भी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं और इम्प्लीमेंट करके अपने तक पहुंचाते हैं, वो सब पॉलिसीज जो भी है, दैट विल बी अवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Soon I'll approach you again.